ناول چلو وفا کے دیس چلتے ہیں، از قلم فریحہ مرزا، ایپیسوڈ نمبر 23۔ مبارک ہو، تمہارا بیٹا مل گیا ہے اور صحیح سلامت میرے پاس ہے۔ وہ تنزیہ بولا تھا، اس کی بات پر سبحان نے یکدم اسے چونک کر دیکھا اور نظریں جھکا لی، البتہ کہا کچھ نہیں تھا۔ خوشی نہیں ہوئی؟ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں بولا تھا۔ سبحان اب بھی خاموش رہا۔ دوسروں کی خوشیوں کو چھیننے والوں کو کبھی خوشی نہیں ملتی۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولا تھا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے بہت سے لوگوں کی خوشیاں چھینی ہیں، مجھے کبھی خوشی نہیں مل سکتی۔ سبحان نے سسکتے ہوئے کہا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتا، وہ درشتی سے بولا تھا۔ یہ پچھتاوا مجھے جینے نہیں دے گا۔ اس شخص کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے۔ تمہاری یہی سزا ہے کہ جب تک تم زندہ ہو پچھتاتے رہو۔ یہ پچھتاوے جان لے لیتے ہیں، تم اب روز جیو گے اور روز مرو گے۔ وہ نفرت سے کہہ کر باہر نکل گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اسے پیچھے سے سبحان کو چیخ چیخ کر روتے سنا تھا۔ آج دلاور کو بے ہوش ہوئے دوسرا دن تھا، اسے ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا، اور یہی تشویش کی بات تھی۔ مصطفیٰ کا کہنا تھا کہ اس کے سر کے پچھلے حصے میں شدید چوٹ آئی ہے، جس کی وجہ سے یہ کوما میں چلا گیا۔ اب یہ کب ہوش میں آتا ہے وہ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ یاور نے اس کے بیڈ کے پاس کھڑے ہو کر تشویش سے پوچھا۔ پتہ نہیں، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا، وہ گہری سانس لے کر بولا تھا۔ فکر مت کرو، یہ گھوڑا جلدی ہوش میں آ جائے گا، حسام نے بے فکری سے کہا۔ اللہ کرے، وہ امید سے بولا۔ دلاور کا ہوش میں آنا بہت ضروری تھا، اگرچہ ان کے پاس بڑے پکے ثبوت ہیں، لیکن اگر دلاور اپنے باپ کے خلاف گواہ بن جاتا تو ان کا کیس اور مضبوط ہو جاتا۔ اگر اسے ہوش نہ آیا تو؟ یاور نے فکر مندی سے کہا۔ بندے کی شکل اچھی نہ ہو تو بات اچھی کر لے۔ حسام نے اسے ملامتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، جس پر وہ ہفکی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ اسے ہوش آ جائے گا یاور، بے فکر رہو، ہمارا کیس مضبوط ہے۔ اسے ہوش نہ بھی آیا تو بھی اس کے باپ کو سزا ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ ارتضیٰ بالکل ٹھیک کہہ رہا۔ حسام نے اس کی تائید کی تو اس نے سر کو ہم دیا، جیسے میں ایک بات سوچ رہا تھا۔ یاور تھوڑی مسلتے ہوئے اب ان دونوں کی طرف مڑا۔ جو سوچتے رہتے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے، حسام نے سر کو دائیں بائیں ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ یاور نے اس کا بازو مروڑتے ہوئے پوچھا۔ گھٹیا انسان، چھوڑ مجھے۔ میرے کہنے کا مطلب تھا، جو لوگ صرف سوچتے ہیں وہ سوچتے سوچتے ہی مر جاتے ہیں، اور مرنے سے پہلے بھونک دینا چاہیے، اپنی سوچوں کو زبان دینی چاہیے۔ وہ درد سے کراہتا ہوا بول رہا تھا۔ یاور نے اس کا بازو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ وہ تڑپ کر پیچھے ہوا اور غصیلی نظروں سے یاور کو دیکھا۔ میری بات تو سن لیتے، میں یہ سوچ رہا تھا کہ پریم 2 دن سے ہمارے پاس ہے، تو آکاش وغیرہ نے تمہیں یا اسے کوئی فون نہیں کیا؟ یاور نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کا کتوں والا حال کیا ہے؟ میں نے بھابھی کے پیچھے تھا وہ، آکاش کو اس نے میرے کہنے پر یہی بتایا کہ… وہ بولتے بولتے رکا اور ایک نظر ارتضیٰ کے چہرے کو دیکھا۔ کہ ارتضیٰ نے سنجیدگی سے پوچھا تو حسام نے ہچکچاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا کہ بھابھی اس کی قید میں ہے اور تو بھی سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہے۔ اپنی بیوی کے لیے تو زبان کھول دے گا اور وہ یوں ہی سپاٹ لہجے میں بولا۔ حسام نے خوف سے اس کی سر پڑتی آنکھوں کو دیکھا جو لال ہو رہی تھی، اور یہ کہ اسے سبحان کے بارے میں کوئی کلو ملا ہے، وہ اسے ڈھونڈ کر ہی واپس آئے گا۔ وہ یوں ہی بے تاثر چہرے کے ساتھ بولا، البتہ اس کی آنکھوں میں بے پناہ سرخی دوڑ رہی تھی۔ I'm sorry، میں بھابھی کا… حسام نے نظریں جھکائے ہوئے کہنا چاہا، مگر اس کی ایک سٹ نظر پڑتے ہی وہ چپ ہو گیا۔ میں ان سب سے نپٹ لوں گا، مگر میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ اس سب میں میری بیوی کا نام آئے۔ خدا کی قسم، میں ہر اس شخص کی زبان کاٹ کر رکھ دوں گا جو اپنی زبان سے میری بیوی کا نام لے گا۔ وہ سٹ لہجے میں بولتا لمبے لمبے ڈنک بھرتا باہر سے چلا گیا تھا۔ یاور اور حساب نے ایک دوسرے سے نظریں چرائیں اور خاموشی سے بیٹھ کے جانتے تھے وہ دونوں کہ وہ اپنی بیوی کا نام کسی کی زبان سے سننا پسند نہیں کرتا تھا۔ بہت شوق تھا تمہیں مجھ سے ملنے کا، اس کے لہجے میں بچے کی کاٹ تھی جس نے مقابل کی روح تک کو ہلا ڈالا تھا۔ تو تم کون ہو؟ اپنے سامنے ایک اجنبی ماسک پوش کو کھڑے دیکھ کر پریم کا گلا خشک ہو گیا۔ کل حسام سے مار کھانے پر وہ بے ہوش ہو گیا تھا، اور اب کسی اجنبی نے اسے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا تھا۔ وہ چھت سے الٹا لٹکا ہوا تھا، اچانک ہی ہل کر رہ گیا۔ ہم آپ کے ہیں کون؟ اس سے محظوظ انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم ہیں کون، اس نے اس بار قدرے بلند آواز میں کہا تھا، اور جواب چہرے سے ماسک کھینچتے ہوئے دیا تھا۔ ہم آپ کے باپ لگتے ہیں۔
प्रेम ने फटी फटी आंखों से उस शख्स को देखा जो हकीकत में उसके सामने खड़ा था और पिस्टल को उंगलियों के दरमियान घुमाता हुआ उसे ऐसे ही देख रहा था जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को जाल में फंसता देखता है। उसके वजह चेहरे पर बेपनाह सख्ती थी, नाबिलब सख्ती से आपस में पेवस्त थे। उसके चेहरे पर सबसे ज्यादा पुरकशिश चीज उसकी आंखें थी, गहरी सी आंखें जिनमें बहुत से राज छुपे हुए थे। उन आंखों में गहरी सुर्खी छाई हुई थी। वह साहिराना शख्सियत रखता था, दराज कद वजीह शख्सियत, ऊपर से उसका संजीदा लहजा वह मुकाबल को मरूब कर देने की सलाहियत रखता था। हाँ तो मैं कह रहा था कि रिश्ते में हम तुम्हारे बाप हैं, इसलिए नजरें झुका कर बात करना। पिस्टल का रुख प्रेम की तरफ करते हुए उसने जैसे उसे वार्न किया था। तो तुम? प्रेम के होंठ कब कपाए। उसने अब तक सिर्फ यावर और हसाम को देखा था, उसने इर्तिजा की तस्वीर नहीं देखी थी। वह बगैर जाने भी जान गया था कि उसका बाप बनकर उसके सामने खड़े होने वाला कोई मामूली आदमी नहीं हो सकता। तुम नहीं, आप। उसने तस्दीक की। खुद को तुम कहने की इजाजत मेरी बीवी को भी नहीं, वह सर्द आवाज में जता रहा था। आप इर्तिजा हैं? प्रेम ने उसे खौफसदा नजरों से देखते हुए अहमकाना सवाल पूछा। इर्तिजा के लबों पर एक तंजिया मुस्कुराहट आई थी। इर्तिजा नहीं, मेजर इर्तिजा। मेजर इर्तिजा हैदर खान नाम है मेरा। दुनिया मुझे बहुत सारे नामों से जानती है, मेरा कोई एक नाम नहीं, मेरी कोई एक शनाख्त नहीं। उसकी रौबदार आवाज उस नीम तारीख सेल की दीवार में गूंज गूंज कर पलट रही थी। मुझे मुझे यहाँ क्यों लाया? प्रेम ने तड़प कर पूछा था। क्योंकि तुम मुझसे मिलना चाहते थे, उससे जताया। खुशी हुई मुझसे मिलकर, आखिर पर वह तनसिया बोला था। तुम जानते नहीं हो मुझे, मैं कौन हूँ? प्रेम ने अपने तय उससे धमकी दी। भूल गए, हम तुम्हारे बाप हैं, तुम्हें तुमसे ज्यादा जानते हैं। उसका जताता हुआ अंदाज प्रेम को सरासर अपना मजाक उड़ाता लगा था। अंदर आ जाओ, उसने दरवाजे के करीब जाकर कदरे ऊंची आवाज में कहा। उसकी इजाजत देते ही हसाम और यावर अंदर आ गए थे। यावर के हाथ में कॉपी पेंसिल जबकि हसाम के हाथ में कैमरा था। हसाम, उसे खोल दो और चेयर पर बांध दो। उसे खोलने का इशारा किया। हसाम और यावर ने मिलकर उसकी जंजीरें खोली। वो जो छत से उल्टा लटक रहा था अचानक ही नीचे गिरा था। उसे एक मिनट भी सुकून दिए बगैर उन दोनों ने घसीट कर खड़ा किया और कुर्सी पर बिठाकर बांधना शुरू किया। इर्तिजा ने दोबारा अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया और एक दूसरी कुर्सी खींचकर ऐन उसके सामने बैठ गया। लेट्स स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन, अंग्रेजी में बोला था। हसाम रिकॉर्डिंग कर रहा था और यावर कुछ लिख रहा था। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, प्रेम ने हठधर्मी से कहा। उसकी बात पर इर्तिजा की आंखों से नरमी का तासुर गायब हुआ और उसकी जगह स्पाट तासुरात ने ले ली। आंखें एकदम शोले उगलने लगी थी। उससे झुककर जींस फोल्ड की और पिंडली के वह इंतहाई खतरनाक लहजे में बोला था। तुम जो करना चाहते हो करो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। प्रेम दर्द पर काबू पाते हुए बोला। ठीक है, फिर ऐसे है तो फिर ऐसे ही सही। उससे जैसे समझकर सर हिलाया। 1 2 3, अपने बाप की बात मानते हैं बेटा। हसाम ने प्रेम को पुकारा जो सहमा हुआ उन तीनों को देख रहा था। ये जो आदमी तुम्हारे सामने है ये इंसान ही जिन है, और यकीन करो ये तुम्हें तड़पा तड़पा कर मार देगा। उसकी बात मान लो। यावर ने भी उससे डराया और आखिर पर कदरे नासहाना अंदाज में कहा। 4 5, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। वो अपनी जिद पर कायम था। हसाम और यावर ने तासुब से उसे देखा। 6 7, मरेगा आज तू। हसाम ने उसे अफसोस भरी नजरों से देखा। 8 9 10, गिनती खत्म हो चुकी थी। उसने आग उगलती नजरों से प्रेम को देखा जो अब भी जुबान खोलने पर तैयार नहीं था। उसे बगैर देर किए उसके दाएं हाथ की प्रेम की दिल खराश चीख गूंजी। हसाम और यावर ने रुख फेर लिया। अब बताएगा या नहीं? उसकी दूसरी उंगली के साथ बोला था। नहीं, प्रेम ने तड़पते हुए कहा था। ओके, उससे कहते हुए प्रेम आता हूँ, भगवान के लिए ये जुल्म मत करो। प्रेम तकरीबन गिड़गिड़ाया था। मैं किसी भगवान के लिए एक मल्क दुश्मन एजेंट को नहीं छोड़ सकता। उससे 2 टक अंदाज में बावर करवाया। तुम्हें जो चाहिए मुझे बताओ, मुझे यहाँ से जाने दो। तुम जितना पैसा कहोगे मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। प्रेम ने उसे लालच दिया, शायद कि वो उसकी झांसा में आ जाए। तुम्हें पता है प्रेम, गहरी सांस लेकर पीछे हटते हुए उसने कहना शुरू किया। सुल्तान महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर 17 हमला किए थे और जानते हो जब उसे फतह हुई थी तो उसने सोमनाथ के मंदिर में मौजूद सारे बुत तोड़ दिए थे। वो रुका और प्रेम को देखा, फिर बात जारी की।
एक बड़ा बुत था, पता नहीं क्या नाम था उसका। वॉटेवर, वो जो भी था, हिंदुओं ने सुल्तान के सामने हाथ जोड़ दिए थे कि उस बुत को कुछ न कहे। हिंदुओं ने सुल्तान को हीरे जवाहरात और सोने चांदी की पेशकश की थी। उसके ईमान को खरीदना चाहा था, लेकिन पता है सुल्तान ने आगे से क्या कहा? उसे एक ड्रामाई वक्फा दिया। प्रेम खामोशी से उसे सुन रहा था। सुल्तान ने कहा था, मैं चाहता हूँ क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ बुत चिकन के नाम से पुकारा जाऊँ, ना कि बुत फरोश के हवाला से। वो रुका और एक बार फिर प्रेम के चेहरे को देखा जहाँ दर्द के आसार थे, मगर फिर भी वो पूरी तवज्जो से सुन रहा था। आज अब तुमने मुझसे वही बात की है जो सदियों पहले सुल्तान महमूद गजनवी से हिंदुओं ने की थी, तो मुझे किस्मत के इस खेल पर हंसी आ रही है। वह हंसा। तो मुझे दौलत तो दे दोगे, मगर मेरा ईमान नहीं खरीद सकते। मैं चाहता हूँ इर्तिज़ा हैदर खान क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ मुहिब्बे वतन के नाम से पुकारा जाए, ना कि ईमान फरोश के नाम से। वो आखिर पर जैसे मुस्कुराया था। मैं मीर जाफर की तरह मल का गद्दार नहीं बन सकता। मेरी मट्टी का मुझ पर कर्ज है प्रेम। प्रेम ने बेहद लाजवाब होकर उसे देखा था। आज अगर मैं तुमसे अपने ईमान के बदले दौलत खरीद लूंगा तो अपना सब कुछ हार जाऊंगा। अपनी इज्जत नफ्स, अपना वकार, अपनी सच्चाई, अपनी ईमानदारी, अपना किरदार, अपना ईमान, अपना ज़मीर, सब कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। उसकी आंखों में एक अजीब सा तासुर था जिसने प्रेम को चौंकने पर मजबूर कर दिया। क्या एक मुसलमान का ईमान इतना मजबूत होता है कि उसके सामने दुनिया की हर दौलत ला कर रख दी जाए, फिर वो इनकार कर देगा? किस लिए? अपने ईमान के लिए, क्योंकि उसके लिए अपना ईमान हर चीज़ से बढ़कर है। प्रेम को ये अल्फाज याद आए थे। ये अल्फाज उसने सुने थे कहीं बहुत पहले, जब वह पाकिस्तान आया था। तब एक बूढ़े आदमी को उसने अपने काम के लिए हायर करना चाहा था और उसने हराम कमाने से साफ इनकार कर दिया था। उस शख्स को भूखा रहना और फाका से मरना मंजूर था, मगर दौलत के बदले अपना ईमान बेचना गवारा नहीं था। तो मुसलमान बहुत अजीब होते हो। प्रेम के मुंह से भी इख्तियार निकला। यूनिक बनने के लिए और बनना पड़ता है। हम मुसलमान आम नहीं होते। मेरा मजहब अलग है, तुम लोगों के लिए ऑड है, पर मेरे लिए परफेक्ट है। इर्तिज़ा चमकती आंखों के साथ बोला था, पर तुम मुसलमान वैसे नहीं हो जैसे तुम्हारा मजहब बताता है। इस्लाम परफेक्ट है, पर मुसलमान परफेक्ट नहीं। मुसलमान इस्लाम पर अमल नहीं करते तो तुम इस्लाम को इल्ज़ाम नहीं दे सकते। मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। प्रेम यकदम बोला था। उसने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। यावर और हसाम ने अपनी अपनी पोजीशन संभाली ही थी कि इर्तिज़ा ने उसे कोई मखसूस इशारा किया, जिस पर वह सर हिलाते हुए उठा और कमरे के एक कोने में पड़ा हुआ मेडिकल बॉक्स उठाया और प्रेम की तरफ बढ़ा। उसने एहतियात से उसके हाथ की पट्टी की। प्रेम ने तशक्कुर से उसे देखा। तफ्तीश दोबारा शुरू हो चुकी थी। नाम मेजर प्रेमराज। तारीख पैदाइश 27 मई 1996। उम्र 26 साल। मुल्क इंडिया। नेशनैलिटी इंडियन और अमेरिकन नेशनैलिटी है मेरे पास। इसके अलावा पाकिस्तान की नेशनैलिटी मुझे एजेंसी की तरफ से दी गई थी। कब से पाकिस्तान में हो? 3 साल से। किसने भेजा है तुम्हें पाकिस्तान? मेरे ऑफिसर्स ने। किस मकसद से आए हो? मैं जासूस हूँ। मेरा काम जासूसी करना है। कौन से खुफिया राज मिले हैं? हम 3 साल से कोशिश में हैं, अभी तक कोई खास मालूमात नहीं मिली। तुम्हारे अलावा और कौन है? मेजर आकाश और मेजर रामिश। उस मिशन में वो दोनों मेरे साथ आए हैं। पाकिस्तान में कहाँ रहते हो? इस्लामाबाद के एक सेक्टर में हमारा एक अपार्टमेंट जैसा छोटा सा घर है, हम वहीं रहते हैं। प्रेम ने एड्रेस बताया था। सुबान खान से कैसे ताल्लुकात हैं? उसके हमारी एजेंसी से ताल्लुकात थे। वो मालूमात हमें बेचा करता था, या एक तरह से वो हमारा सहूलतकार था। कॉलेज बॉम्ब ब्लास्ट में वो तुम लोगों को सपोर्ट कर रहा था। हाँ, उसी ने शामों को हम तक भेजा था। हमने उस पर विश्वास किया था, लेकिन उसने एक नज़र हसाम को देखा, फिर बोला, खैर वो अब खुद गायब है और हम नहीं जानते वो कहाँ है। अब तुम लोगों का क्या प्लान है? मैं नहीं जानता। पिछले 3 सालों में जो दहशतगर्दी के छोटे छोटे हमले हुए हैं, उनके पीछे हम ही हैं और इल्ज़ाम अफगान तालिबान पर लगा दिया गया। हाँ, हम यही प्लान करते हैं। हमारे सीनियर का कहना है कि मुसलमानों को कमज़ोर करना है तो उनको आपस में लड़वा दो। अब तुम्हें किस काम से भेजा गया था? आकाश और रामेश ने किसी तरह तुम्हारे बारे में पता चला लिया था। वो तुम्हारा घर नहीं ढूंढ सके, मगर तुम्हारी पत्नी के घर तक पहुंच चुके हैं। वो चाहते थे मैं तुम्हारी पत्नी को अगवा करूं, और आगे वो हिचकिचाते हुए चुप हो गया था। इस सब का मकसद? वो सख्ती से बोला, वो तुम्हें तुम्हारी पत्नी के जरिए ब्लैकमेल करेंगे। उस वक्त तुम्हारी पत्नी खतरे में है। विश्वास करो, उन्हें एक बार पता चल गया कि तुम्हारी पत्नी मेरी कैद में नहीं है और मैं गायब हूँ, तो वो तुम्हारी पत्नी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसके अलावा कोई और बात तुम्हें मालूम हो? वो चेहरे पर हाथ फेर कर बोला था। उसके दिमाग में झक्कर चल रहे थे। एक तूफान था जो दिल में उठ रहा था।
मजीद मैं कुछ नहीं जानता। दिलावर को भी उन्होंने कैद कर रखा है। दिलावर अब हमारी कैद में है, वह सुकून से बोला था। क्या? मगर कैसे? प्रेम ने बेहद हैरत से उन तीनों को देखा। बोला ना, हम तुम्हारे बाप हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ISI को समझा क्या है तुमने? हसाम रोब झाड़ते हुए बोला था। उसको खाना दो, बाद में बात होती है। वो चुपचाप वहां से उठकर बाहर चला गया था। अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हारी पत्नी तक ना पहुंचे तो उसकी हिफाजत करो, वो महफूज नहीं। प्रेम की आवाज पर वो ठटक कर पलटा, जो दोस्ताना मुस्कुराहट लिए बोल रहा था। उसने आहिस्तगी से सर हिलाया और बाहर की तरफ बढ़ गया। वह बड़ी देर से लॉन में कैन की कुर्सी पर बर्जमान कोई किताब पढ़ रही थी। करीब रखे फोन के रिंगटोन पर वो चौंक कर बगैर नामो नंबर देके फोन का कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम। दूसरी जानिब से मर्दाना आवाज सुनकर उसने कुछ मसरूफ अंदाज में जवाबन पूछा। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन? आपका सब कुछ, शौकी से भरपूर जवाब था। जुबिया ने फोन कान से हटाकर उसे घूरा और फिर स्क्रीन पर चमकता नाम देखकर उसे करंट लगा। आप? वो बुरी तरह से बौखला गई थी। जी मैं, वो महसूस सा हशाश बशाश लहजे में बोला था। कोई काम था? उससे किताब बंद करके गोद में रखते हुए सवाल किया। नहीं, काम तो कोई नहीं था। क्या मैं ऐसे फोन नहीं कर सकता तुम्हें? वो मसनूई हबकी से बोला था। नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं। वो थोड़ी शर्मिंदा हो गई थी। असल में मैं पूछना चाह रहा था कि तुम इस रिश्ते से खुश हो। उसने बड़े डायरेक्ट अंदाज में पूछा था। मैं अपने घर वालों की खुशी में खुश हूँ, उससे रिवायती जवाब दिया। और तुम्हारी खुशी? मुस्तफ़ा मुतमईन नहीं हुआ था, जैसे मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह की। वह सादगी से बोली थी। मेरा सब्र, मेरे आंसू रायगा नहीं गए, मेरी दुआएं कबूल होगी, मैं शुक्रगुजार हूँ। वह नम आवाज में कदरे संजीदगी से ठहरे हुए लहजे में कह रही थी। मैं भी शुक्रगुजार हूँ। वह कुछ लम्हों की खामोशी के बाद धीमी आवाज में बोला था। तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तुमने मुझे माफ कर दिया और मेरा साथ कबूल कर लिया। तुम मुझे ना मिलती तो मैं मर जाता। वह अजीब रंजीदगी भरे मलाल से कह रहा था। भूल जाए मुस्तफ़ा, जो हुआ सो हुआ, वो सादगी से बोली थी। मुस्तफ़ा को एक बार फिर उससे मोहब्बत हुई थी, बेपनाह मोहब्बत। तुम्हें पता है सोफिया, तुम बहुत खास हो। वो कहे बगैर नहीं रह पाया था। मैं तो आम से हूँ, वह हंसी। मोहब्बत एक आम से इंसान को भी खास बना देती है। मेरे दिल से पूछो तुम मुझे कितनी खास लगती हो। वह जज्बात से भरपूर लहजे में बोला था। मैं फोन बंद करने लगी हूँ, वो धड़कते दिल के साथ बोली और फोन बंद कर दिया। मुस्तफ़ा आवाज़ें ही देता रह गया, मगर वो फ़ोन बंद कर गई थी। ये उन्हें क्या हो गया आज? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे थे। लगता है रोज़े की वजह से दिमाग चल गया। वह बड़बड़ाते हुए दोबारा किताब पर झुक गई थी। चची मेरे साथ चलें? लेकिन क्यों बेटा? नूरी ने हैरत से पूछा। वो वैसे ही पुरसकून खड़ा था, जीन्स की जेबों में हाथ डाले। अलबत्ता चेहरे से कोई तासुर वाज़िह नहीं था। चची प्लीज, ये इन बातों का वक्त नहीं है, मज़ीद देर मत करें। वह तहम्मुल से बोला था। प्रेम ने उसे जो कुछ बताया था ये उसी का नतीजा था। वह अब कोई रिस्क नहीं ले सकता था। वो जानता था अब सिमल यहाँ महफूज नहीं है, इसलिए आधी रात को उनके घर पहुंच गया था। मगर बेटा, अगर मगर कुछ नहीं चची, उनकी बात काट कर वो बोला था। सिमल को बुलाएं, अपना कुछ सामान साथ रख लें और अभी मेरे साथ चलें। आप दोनों यहाँ सेफ नहीं है, मेरे घर चलें। उसने बात इतनी हतमी और कतई अंदाज में की थी कि वह मजबूरन खामोश होगी। वो क्या कहती, वो कुछ नहीं सुनने वाला था। इसलिए खामोशी से ऊपर सिमल को बुलाने के लिए जाने लगी थी जब वो उनके सामने आ गया। आप अपना सामान पैक करें चची, मैं उसे देखता हूँ, वो आपकी बात इतनी आसानी से नहीं मानेगी। वो थोड़ी नरमी से बोला था। इस बार नूरी ने हाँ में सर हिला दिया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वो तेजी से जीने फलांगता सिमल के कमरे की तरफ बढ़ा। शायद वो पहली बार सही रास्ते से उसके कमरे में जा रहा था, वरना वो हमेशा खिड़कियां फलांग कर आता। उसे यही सोचकर सर झटका और दरवाजे पर दस्तक दी। आ जाए। अंदर से सिमल की मसरूफ सी आवाज सुनाई दी। अस्सलाम वालेकुम। उसे कमरे में दाखिल होते ही गंभीर आवाज में सलाम किया। सिमल चौंक कर उसकी तरफ मुड़ी। उसने हैरत से मुंह खोलकर बेयकीनी से उसे देखा, जो बड़ी शान से जेबों में हाथ डाले खड़ा था। आप? वो गालिबन उसकी यूं इस वक्त सीधी तरह आने की तवक्को नहीं कर रही थी। सलाम का जवाब देना हर मुसलमान पर फर्ज है। उसके तंज पर सिमल शर्मिंदा होगी। वालेकुम अस्सलाम, वो कुछ हफत से बोली। आप यहाँ कैसे? वो भी इस वक्त वो अब हैरान हो रही थी। अपना सामान पैक करो और चलो मेरे साथ। वो उसके सवालों को इग्नोर करता हुक्म दे रहा था, और ये बात सिमल को पसंद नहीं आई थी। क्या मतलब है आपका? मैं क्यों चलूँ आपके साथ? वो बदक कर बोली थी। अगर तुम सचमुच में दोबारा अगवा होना चाहती हो तो शौक से यहाँ रहो, मैं चची को लेके जा रहा हूँ।
और यकीन करो अब की बार मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊंगा। वो संजीदगी से बोलता दरवाजे की तरफ बढ़ गया। रुके, वो पीछे से तेजी से बोली थी। इर्तिजा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी जिसे वो छुपा गया। पूरी बात तो बताए ना, ऐसे कैसे आप मुझे हुक्म दे सकते हैं? वो झुंझुलाकर बोली थी। बात यह है कि जो लोग उस दिन तुम्हें अगवा नहीं कर सके थे वो अब तुम्हें अगवा नहीं करेंगे। वो कहते कहते रुका, एक नज़र सिमल पर डाली जो गौर से उसे सुन रही थी, और आखिरी बात पर रिलैक्स से होगी। ये तो अच्छी बात है ना, अब वो मुझे अगवा नहीं करेंगे। वो हाथ झल्लाकर बेफिक्री से बोली थी। वो अब तुम्हें अगवा नहीं करेंगे, वो अब तुम्हें सीधी गोली मारेंगे। इर्तिजा की दूसरी बात ने सिमल का सुकून गारद कर दिया। मेरी किसी से क्या दुश्मनी है, मुझे क्यों मारेंगे? वो तो तड़प ही उठी थी उस नाइंसाफी पर। तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा? उनकी दुश्मनी मुझसे है। मुझसे जुड़े किसी भी इंसान को वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, और ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो झुल्लाए हुए अंदाज में बात वाज़ह कर रहा था। जाओ सामान पैक करो, तुम्हें और चच्ची को मम्मी के पास छोड़ देता हूँ। वो दोबारा उसी टोन में बोला था। सिमल ने बेबसी से उसे देखा। वो कितना बदतमीज सा, हर वक्त रोब झाड़ता रहता था या धमकियां देता, और अब नवाबों की तरह हुक्म चला रहा था। और फिर आधे घंटे में उससे सामान पैक किया था। रात के 2 बजे वो नूरीन और सिमल को अपने घर के अंदर छोड़कर किसी से मिले बगैर चला गया था। मम्मी को फोन पर पहले ही सब कुछ बता चुका था। आज 10 दिन गुजर चुके थे। सिमल वहां एडजस्ट हो चुकी थी, फिर भी वो उदास थी। यहाँ पर वो वापस नहीं आया था अभी तक। आखिरी इशरा शुरू हो चुका था। आप कब वापस आएंगे? सिमल ने जाने से पहले उसे पूछा था। मेरा इंतजार मत करना, उसने अजीब से अंदाज में कहा था। मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं वापस भी आऊंगा या नहीं। वो उसका हाथ पकड़कर हल्का सा मुस्कुराया और फिर छोड़ दिया। उसने उल्टे कदम बढ़ाए थे। सिमल को लगा था शायद वो रुक जाएगा, मगर नहीं। वो यूं ही उल्टे कदम बढ़ाता रहा, फिर अचानक थम गया और मुस्कुराकर सिमल को अलविदाई हाथ हिलाया। वो मुस्कुरा भी न सकी थी, बस फेंकी आंखों से उसे देखती रही, और फिर वो अचानक पलट गया था। और उस दिन से वो लम्हा उसके जहन से मिट नहीं रहा था। वो जितना सोचती उतना ही उसे रोना आता। वो पता नहीं कब वापिस आएगा। इंतजार बहुत जानलेवा होता है। वो एक एक दिन कैसे गुजार रही थी ये बस वही जानती थी। आकाश, रमेश ने उसे जोर से तकरीबन चीखते हुए आवाज दी। वो जो आराम से लैपटॉप के सामने बैठा हुआ था, उसकी पुकार पर बौखला गया और तेजी से नीचे तहखाने की तरफ बढ़ा, जहां अभी कुछ देर पहले रमेश गया था और अब उसे चीख चीख कर बुला रहा था। क्या हो गया? वह आवाज भागता होते हुए तहखाना में दाखिल हुआ। ये पूछो क्या नहीं हुआ? रमेश ने सर पर हाथ फेरा और गुस्सेली नजरों से उसे देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? आकाश ने हैरत से पूछा। ये देखो। रामेश ने कुर्सी की तरफ इशारा किया जो नीचे गिरी हुई थी। पास ही जमीन पर खून जमा हुआ था, और सबसे हैरत की बात यह थी कि दिलावर वहां मौजूद नहीं था। आज 10 दिन बाद रामेश किसी ख्याल के तहत दिलावर को देखने नीचे आया था। वो दोनों उसे अक्सर फरामोश कर चुके थे। रामेश जो उसे वहां मुर्दा हालत में पड़े देखने की तवक्को कर रहा था, उसे वहां ना पाकर सीख पा हो गया। ये किधर गया? आकाश ने लड़खड़ाते हुए कहा। मुझे क्या पता, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमने खुद ही बताया था कि वो मर चुके। रामेश ने दोनों हाथों में सर थाम लिया। हाँ, वो मर चुका था। आकाश ने उससे ज्यादा खुद को यकीन दिलाया। मुझे लगता है कोई उसकी लाश को ले गया पिछले दरवाजे से। रामेश ने ख्याल जाहिर किया। मुझे नहीं पता, हो सकता है ऐसा ही हो, लेकिन अगर ऐसा है तो हम सख्त खतरे में हैं। कोई हमारे बारे में जानता है। प्रेम भी अभी तक नहीं आया। मुझे लगता है कोई गड़बड़ जरूर है। वो हमें फोन करके तसल्लियां दे देता है, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आकाश बेचैनी से बोला था। सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। रामेश ने गहरी सांस लेकर सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाया। बेसमेंट में कोई कैमरा नहीं लगा, और पिछले दरवाजे वाली साइड पर जो कैमरा लगा है वो खराब है। आकाश की हल्की आवाज में कहे गए जुमले सुनकर वो रुक गया। लानत हो। वह सर झटक कर सीढ़ियां चढ़ने लगा था। हाँ, आकाश ने एक गहरी सांस ली और उसके पीछे पीछे सीने चढ़ने लगा था। दिलावर कहाँ है? वो फोन कान से लगाए पूछ रहा था। हाँ, इधर ही है, यावर ने आम से अंदाज में कहा। वो बात मानने के लिए तैयार है? इर्तिजा ने संजीदगी से पूछा। हाँ, उसे जब से होश आया है वो बिल्कुल खामोश था। कल हमने उससे बात की थी। वो राजी है अपने बाप के खिलाफ गवाही देने के लिए। यावर के बताने पर उसने गहरी सांस ली और पेशानी पर आए हुए बालों को पीछे किया। यावर, शुक्र है उसे होश आ गया। दिलावर का होश में आना किसी मौजूजे से कम नहीं था। 7 दिन बाद वो कोमा से निकल आया था। उसकी याददाश्त भी बिल्कुल ठीक थी, पर अचानक ही वो बहुत खामोश हो गया था। इर्तिजा उससे मिलने बस एक बार गया था। मुझे माफ कर दो, तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, दिलावर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, और इर्तिजा खामोशी से वहां से चला आया था। बाद में यावर और हसाम ने उसे सारी तफसील बताई थी, और ये भी कि उसके बाप के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज हो चुका है।
اب دلاور راضی تھا گواہ بننے کے لیے، ان کا کام مزید آسان ہو گیا تھا۔ السلام علیکم میجر ارسل، میں دراصل روشنی حسام جو ان سے روشنی کے سلسلے میں بات کرنا چاہ رہا تھا، اچانک ہی ان کی باتوں پر حیران رہ گیا۔ وعلیکم السلام میجر حسام، مجھے ارسل ماموں بھی کہہ سکتی ہیں آپ، وہ جواباً بڑی گرم جوشی سے بولے تھے۔ جی؟ وہ حیرت زدہ رہ گیا اور فون کان سے ہٹا کر اسے گھورا۔ ارے میں خنسا کا ماموں ہوں اور آپ خنسا کے ہونے والے شوہر ہیں، تو میں آپ کا بھی ماموں ہوں۔ ان کی شوخی عروج پر تھی۔ جی مس خنسا کا ہونے والا شوہر؟ حسام کے حلق میں جیسے کچھ اٹک گیا تھا۔ ہاں بھول گئے کیا؟ ابھی کل تو تم دونوں کی نکاح کی تاریخ پکی ہوئی ہے۔ عید پر نکاح ہے تم دونوں کا، اور مشن مکمل ہونے پر رخصتی۔ انہوں نے حسام کو 440 میگا واٹ کا جھٹکا لگا دیا تھا، وہ تو اچھل ہی پڑا۔ نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں، میرے ذہن سے نکل گیا تھا، ڈیڈ نے بتایا تھا۔ وہ پوری طرح بوکھلا گیا، اسے خود اب پتہ چل رہا تھا، ڈیڈ نے تو نام بھی نہیں لیا تھا۔ اچھا جو بھی ہے، مجھے تم اپنی بھانجی کے لیے ایک بہترین انتخاب لگے تھے، اس لیے میں نے اور بی جی نے اسی وقت ہاں کر دی تھی۔ تمہارے پیرنٹس کو بس میری بھانجی کا ہمیشہ خیال رکھنا، وہ میری بیٹی ہے، بہت معصوم ہے، سن رہے ہو نا؟ انہوں نے اس کی غیر حاضر دماغی نوٹ کر لی تھی۔ ادھر حسام کے سر پر دھماکے ہو رہے تھے، وہ تو کچھ جانتا بھی نہیں تھا۔ جی میں سن رہا ہوں، وہ جیسے چونک کر بولا تھا۔ اچھا سر، میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں، ابھی ضروری کام ہے، روشنی سے کہیے گا عید سے پہلے میں اس کی ماما کے پاس اسے چھوڑاؤں گا۔ وہ جلت میں بولا اور فون بند کر دیا، اس سے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ وہ فریج کی طرف بڑھا اور بوتل کھول کر منہ سے لگائی ہی تھی کہ یاد آیا میرا تو روزہ ہے۔ وہ سر جھٹک کر بوتل بند کر کے واپس لاؤنج میں آیا۔ اس سے ڈیڈ کو فون ملا کر کان سے لگایا، بیل جا رہی تھی پر ڈیڈ فون نہیں اٹھا رہے تھے۔ وہ سمجھ گیا کہ ڈیڈ جان بوجھ کر اس کی کال ریسیو نہیں کرے۔ ڈیڈ، اگر آپ نے میری کال ریسیو نہیں کی تو میں ابھی گھر آ جاؤں گا۔ اس سے دھمکی بھرا میسج سینڈ کیا۔ اگلے منٹ ہی ڈیڈ نے کال آ گئی۔ یہ کیا کر دیا آپ نے ڈیڈ؟ مجھ سے پوچھے بغیر میرا رشتہ پکا کر دیا، مجھے بتایا بھی نہیں۔ مطلب شادی میری ہے اور تاریخ بھی آپ فکس کر رہے ہیں۔ وہ فون اٹھاتے ہی شروع ہو چکا تھا۔ حسام، کمانڈر شاویز کی گرجدار آواز پر اسے مجبوراً خاموش ہونا پڑا تھا۔ ڈیڈ، وہ منمنایا، بچے نہیں ہو تم اب۔ انہوں نے اسے ڈانٹا۔ دل تو بچہ ہے، وہ معصومیت سے بولا تھا۔ تمہاری ماں کو جلدی تھی، اسی نے عید پر تمہارے نکاح کا شوشہ چھوڑا ہے۔ وہ کڑ کر بولے تھے۔ جو بھی ہے ڈیڈ، آپ مجھے بتا تو دیتے، میرے بغیر ہی چلے گئے۔ وہ خفا ہوا تھا۔ تم نے جا کر کیا کرنا تھا؟ وہ تفتیشی انداز میں بولے تھے۔ کیا یار ڈیڈ، لڑکی دیکھنی تھی، وہ افسوس سے بولا تھا۔ تو برخوردار، لڑکی آپ پہلے ہی دیکھ چکے ہیں، یاد دلاتا چلوں آپ کو، کیا آپ نے ان کے ساتھ سیلفیز لی تھی؟ کالج میں ان کا بچایا تھا، اور صرف یہی نہیں، ان سے سحری اور افطاری بھی مانگی تھی۔ بعد میں ان کے گھر بھی گئے تھے لڑکی دیکھنے، وہ بھگو کر مارنے میں ماہر تھے۔ حسام کا تو منہ کھل گیا تھا ان سارے انکشافات پر۔ ڈیڈ آپ کو کیسے پتا؟ وہ شوقد انداز میں بولا تھا۔ میں تمہارا باپ ہوں، تمہاری ہر حرکت پر میری نظر ہے، اس لیے اب چپ چاپ بیٹھو اور خبردار جو مجھے ڈسٹرب کیا۔ اور اسے ڈپٹتے ہوئے بولے تھے۔ اوکے ڈیڈ، ویسے ممی ادھر آپ کے پاس ہی ہیں؟ اس نے سادگی سے استفسار کیا۔ ہاں کیوں؟ وہ ناسمجھی سے بولے۔ آئی سی، تو آپ اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی لیے چاہتے ہیں کہ میں آپ کو ڈسٹرب نہ کروں، ہے نا؟ وہ شوخی سے بولا تھا۔ شرم کیا کرو، میں تمہارا باپ ہوں۔ کمانڈر شاویز سخت لہجے میں بولے تھے۔ اس میں شرم کی کیا بات ہے، میں بھی تو آپ کا بیٹا ہوں، وہ ڈھٹائی سے بولا تھا۔ کمانڈر شاویز نے تب کر کال بند کر دی، ورنہ وہ یوں ہی ان کا جینا حرام کر دیتا۔ حسام نے زور سے کہکا لگایا، پھر کچھ سوچ کر فون پر کوئی نمبر ڈائل کرنے لگا تھا۔ خنسا کب سے لان میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی، اس کی سوچوں کا مرکز کل حسام کی طرف سے آنے والا پرپوزل تھا۔ اس کے لیے یہ سب بہت حیران کن تھا، اسے یقین نہیں آیا تھا کہ حسام نے اس کے لیے رشتہ بھیجا تھا۔ اسے حسام کی موم ڈیڈ بہت اچھے لگے تھے۔ سب کچھ اتنی اچانک ہوا، عائشہ آنٹی نے آتے ہی رشتے کی بات کر دی۔ ماموں اور بیجی حسام سے پہلے ہی مل چکے تھے، اس لیے فوراً ہاں کر دی اور منگنی کے بجائے ڈائریکٹ نکاح فکس کر دیا تھا عید والے دن۔ وہ خوش نہ ہوتی تو اور کیا کرتے؟ زندگی نے کتنا حسین پلٹا کھایا تھا، وہ شخص بن مانگے ہی اسے مل رہا تھا۔ وہ انہیں سوچوں میں مسکرا رہی تھی جب اس کے فون پر آتی کال نے اسے چونکایا۔ ان نون نمبر تھا، اسی لیے اس نے کال کاٹ دی۔ کال دوبارہ آنے لگی تھی، اسے پھر کال کاٹ دی، مگر اگلا بندہ بھی شاید ڈھیر تھا، کال مسلسل آ رہی تھی۔ کنسا کو اپنی سوچوں میں اس اجنبی کی دخل اندازی اچھی نہیں لگی تھی، اسے غصہ آ گیا تھا۔ اسے جھنجھلا کر فون کان سے لگا۔ کیا تکلیف ہے؟ وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی تھی۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مجھ سے یقیناً ایک جسارت ہو گئی ہے، تمہیں کوئی شکایت تو نہ ہوگی؟ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے؟
दूसरी जानिब से गंभीर लहजे में किसी ने शेर पड़ा था। खंसा की धड़कनें एकदम तेज हो गई। उसके गालों पर सुर्खी छाई थी। फोन हाथ से गिरते गिरते बजा था। ये आवाज सिर्फ एक शख्स की ही हो सकती थी। उसकी समाते कभी धोखा नहीं खा सकती। आप कौन? वो फिर भी पूछ बैठी थी। हम आपके वो हैं। दूसरी तरफ से शोखी से भरपूर जवाब दिया गया था। मेजर हसाम है ना? वो धड़कते दिल से बोली। जी मेजर हसाम हूँ मैं, मिस खंसा। वो उसी शोक अंदाज में बोला था। आप मुझे मिस खंसा न कहा करें। वो मिस पर जोर देते हुए बोली थी। दूसरी जानिब हसाम ने कहका लगा। अभी आप मिस खंसा हैं, बाद में आपको मिसेस खंसा मिसेस हसाम कह लूंगा। वो शोखी से भरपूर लहजे में उसे तंग करता हुआ बोला था। बाद में कब? खंसा के लबों से बेसाख्ता निकला और उससे फौरन जुबान तांतों तले दुबाई थी। बाद में जब वो कुछ सोचने की एक्टिंग कर रहा था। आप मुझे तंग मत करें, वो कुछ हबकी से बोली। तंग तो आपने हमें किया, वो भी दो बदो बोला था। आप इल्जाम लगा रहे हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। उसकी इतनी मासूमियत पर हसाम को हंसी आ गई। ये मैं आपको फिर बताऊंगा, वह हंसी दबाकर बोला था। आप हंस रहे हैं ना? वह हनौस खफा थी। मेरी इतनी मजाल? वो डरने की एक्टिंग कर रहा था। खंसा हंस पड़ी थी। उसकी जिंदगी से भरपूर हंसी हसाम के कानों में गूंजी थी, शफाफ खूबसूरत हंसी। मैंने आपसे एक बात पूछने के लिए फोन किया था। वह कुछ लम्हों बाद कदरे संजीदगी से बोला था। कौन सी बात? आप इस रिश्ते से खुश हैं? उसने बिलातम ही डायरेक्ट सवाल किया था। जी, आपके मम्मी और डैड बहुत अच्छे हैं। वो आहिस्तगी से बोली थी। हाँ, मेरी मम्मी बहुत अच्छी हैं। डैड तो हिटलर हैं। वो आखिर में मुंह बनाकर बोला था। अंकल भी अच्छे हैं। वो फौरन मदाफाना अंदाज में बोली थी। और अंकल का बेटा कैसा है? उससे शौकी से पूछा। अंकल से ही पूछी, उससे साफ दामन बचाया। पर मुझे अंकल की होने वाली बहू से सुनना है। वह बसक था। मैं नहीं बता रही, वो इतरा कर बोली थी। फिर मैं भी नहीं बताऊंगा कि वो धमकी देते देते रुक गया था। कि कि आप मुझे मुझे बहुत बहुत अच्छे अच्छे लगते हैं। लगते? वो झटकी। फिर उसकी बात पर गौर किया। उसे एकदम हसाम की चालाकी समझ आई थी। थैंक यू मिस हंसा, मैं हूं ही बहुत अच्छा। हसाम ने कहका लगाया। खंसा तो जल ही गई थी। दोगला इंसान, चीटर। खंसा, मैं आपसे कोई वादा नहीं करूंगा कि वादे टूट जाते हैं। मैं आपको कोई उम्मीद नहीं दिलाऊंगा, क्योंकि उम्मीदें जब टूटती हैं तो बहुत दुख देती हैं। मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा, आपको खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। उसकी खामोशी पर वह कदरे संजीदा लहजे में भारी आवाज में बोला था। मैं चाहता हूँ आप एक बार फिर सोच लें। ऐसा ना हो कि कल आपको फिर पछताना पड़े। मेरे लिए मेरी जॉब सबसे अहम है। आर्मी मेरा प्रोफेशन नहीं है, मेरा पैशन है। मेरे लिए सबसे बढ़कर मेरा वतन है। बाकी दूसरे रिश्ते बाद में आते हैं। इंतजार करना बहुत मुश्किल होता है हंसा, आपकी सोच से भी ज्यादा मुश्किल। वह गंभीर लहजे में संजीदगी से बोल रहा था। आप मुझे हमेशा अपने साथ पाएंगे। मुझे कभी अपने फैसले पर पछतावा नहीं होगा। मैं कभी आपकी राह में रुकावट नहीं बनूंगी। वनम आंखों से मुस्कुराते हुए बोली थी। हसाम के दिल में जैसे ढेर सुकून उतर गया। ओके, फिर मिलते हैं ईद पर। वो कुछ सोचते हुए बोला था। ईद पर क्यों? वो नासमझी से बोली थी। मिसेस हसाम मलिक बनने के लिए। वो शौकी से बोला तो हंसा ने घबराकर फोन बंद कर दिया। उफ! उसने अपने दहकते गाल पर हाथ रख लिया। बाजी! गोलू की आवाज पर उसने सर उठाया। हाँ, आपका मुंह क्यों लाल हो रहा है? लग रहा है किसी ने थप्पड़ मारे हैं। गोलू बगौर उसका चेहरा देखते हुए बोला था। खंसा ने तिल मिलाकर जूता उठा लिया था।